Hi everyone, this is Janish Kota here and welcome to our video of accounts. So students, we are going to move forward with the video and the playlist that I've been making now. That is chapter number 10, Financial Statements 2, FIJC Account CBSE textbook. And today what we're going to do in this particular video is sum number 9, page number 419. So students, before moving with the video, I would request you guys to please subscribe to our channel and hit the like button and of course share it the entire playlist to your friends. And students, also if you want me to make more videos on any of the topic, then please let me know in the comment section. And also students, we are running some online and offline tuitions of CBSE accounts as well as for the subjects, also live lectures. So if you want to inquire about that as well, we have dropped our contact number in the description, as well as students, you will find the link in the description of the question and answer that we are solving. The entire question answers, the photo form, you will get it in the description. Chalo, perfect. So students, let's start. I'm on page number 419 and sum number 400 and sum number 9, page 419. Okay. So let's start. We'll discuss the sum. It says from the following balances of Messrs Jyoti Exports. So students, what they have given us in the question is a trial balance and adjustment. What do we need to make? We need to make trading account, profit account, and balance sheet. So let's start. Sundry debtors is current asset. Opening stock, trading. Purchase is also trading. Carriage inward trading. Wages trading. Office rent will be students P&L. Okay, P&L. Next, insurance will be profit and loss. Factory rent trading. Cleaning charges, profit and loss. Salary, profit and loss. Building, students, building is a fixed asset. Next, plant and machinery, fixed asset. Cash and current asset. Gas and water trading. Gas and water will be in the trading, means it's used in the factory. Octroi is basically a type of tax. Trading, furniture, fixed asset. Patent, fixed asset. Okay. So बच्चे लोग आगे बढ़ेंगे to the credit side of the trial balance now. Sundry creditors, current liability. Sales trading, purchase return. Purchase return क्या होता है? It's less from purchase. And चलो बच्चे लोग टिक करेंगे, टिक करेंगे, purchase को टिक करेंगे. Perfect, amazing. Bills payable, current liability, or capital will go in the liability side. Nice students, let's move forward now. Closing stock, सबसे पहले closing stock दिया. Closing stock का तो इफेक्ट क्या है? Trading account, credit side, balance sheet, asset side. Nice, that's great. Next after that, to provision for doubtful debt 5% on debtors. Okay, sundry debtors में students क्या करेंगे? Less from debtors करेंगे पहले तो. Less from debtors because provision for doubtful है, बच्चे लोग को पैसा आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, तो पूरा doubtful है, debtors में से less करेंगे. And second fact, P&L debit side because it's a loss for the firm. चलो बच्चे लोग टिक करेंगे. किसको टिक करेंगे? सन्ड्री डेटर्स को टिक करेंगे. उसमें एडजस्टमेंट है. लेट मी फाइंड द वर्ड बैड डेब्ट्स. देयर इज नो बैड डेब्ट्स, तो हम उसको P&L डेबिट में डाल देंगे. ओके, लेस फ्रॉम डेटर्स एंड P&L डेबिट साइड बिकॉज डेबिट ऑल लॉस एंड एक्सपेंसेस. नेक्स्ट इज वेजेस अमाउंटिंग टू 500 एंड सैलरी अमाउंटिंग टू 350 आर आउटस्टैंडिंग. तो बच्चे लोग हमने क्या पढ़ा है? आउटस्टैंडिंग वर्ड हमेशा ऐड होता है. ओके, मैं सेकंड वाला यहाँ पे लिख रहा हूँ. सो आउटस्टैंडिंग वर्ड, अगर आपको कोई लड़की या लड़का दिख रहा हो स्टूडेंट्स जो बहुत आउटस्टैंडिंग है, तो आपका इंटरेस्ट क्या होता है? सो उसमें ऐड होता है, तो आउटस्टैंडिंग वर्ड हमेशा ऐड होगा. एंड सेकंड इफेक्ट, लायबिलिटी साइड आएगी. क्यों? बिकॉज वो एक्सपेंस है. आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस मतलब समथिंग विच इज स्टिल पेंडिंग, पे करना बाकी है, तो वो लायबिलिटी हो गई. चलो टिक करेंगे स्टूडेंट्स. वेजेस को टिक करेंगे, और सैलरीज को भी टिक करेंगे. वेजेस को टिक करेंगे और सैलरीज को टिक करेंगे. ठीक है. Okay. Next students, what do we have? Factory rent. So factory rent is prepaid. So outstanding and prepaid are exactly opposite to each other. Outstanding में क्या होता है? Something which is pending, और prepaid में हमने पहले ही पे कर दिया है, तो outstanding में ऐड होगा, तो prepaid में हम लेस करेंगे और ये asset साइड जाएगा. एडवांस में हमने स्टूडेंट्स prepaid पहले ही खर्चा पे कर दिया, तो इट्स एन asset for us. चलो बच्चे लोग टिक करेंगे किसको? रेंट, फैक्ट्री रेंट को टिक करेंगे. लेट मी जस्ट चेक व्हाट इज फैक्ट्री रेंट. यार ये फैक्ट्री रेंट वर्ड दिख नहीं रहा है. ओपनिंग शॉप परचेस, ऑफिस रेंट, हाँ ये राशन. फैक्ट्री रेंट हमारा कहाँ जाएगा? असेट में. नेक्स्ट सेकंड इफेक्ट. चलो नेक्स्ट, आउटस्टैंडिंग इंश्योरेंस. अच्छा, डेप्रिसिएशन है. चार्ज ऑन प्लांट एंड मशीनरी एट रेट 5% एंड बिल्डिंग के ऊपर 10% है. चलो डेप्रिसिएशन में भी वैल्यू स्टूडेंट्स क्या होती है? लेस होती है, बिकॉज हमारा वैल्यू वेयर एंड टेयर वैल्यू उसकी कम होती है. एंड सेकंड इफेक्ट, P&L डेबिट में जाएगा बिकॉज इट्स अ लॉस. तो लेस किस में से करेंगे? एसेट में से लेस करेंगे एंड P&L डेबिट साइड.
चलो बच्चे लोग टिक करेंगे प्लांट एंड मशीनरी को और बिल्डिंग को टिक करेंगे। प्लांट एंड मशीनरी और बिल्डिंग सब में एडजस्टमेंट है, मैंने यहाँ पे टिक कर लिया है। एंड मूविंग फॉर टू द इंश्योरेंस पार्ट ना, आउटस्टैंडिंग इंश्योरेंस मैंने बताया था बच्चे लोग, आउटस्टैंडिंग ऐड होता है तो बस ऐड करेंगे और लाइबिलिटी में डालेंगे ये सेम स्टूडेंट। सो व्हाट वी कैन डू, एचएस नंबर 2 और 5 साथ में सॉल्व कर सकते हैं बिकॉज सब आउटस्टैंडिंग ही दिया हुआ है। दैट्स ग्रेट। तो स्टूडेंट्स क्या करेंगे, अब यहाँ पर हमने पूरा का पूरा सब डिस्कस कर दिया है। लेट्स मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स द सम नाउ। चलो सो स्टूडेंट्स यू कैन सी मैंने यहाँ पे ऑलरेडी पूरा का पूरा फॉर्मेट बना चुका हूँ। सम नंबर 9 419 है। What do we have to do? It's time for us to keep the video a little smaller one. Keep it aside. Okay, fine. चलो शुरू करेंगे सम को। सबसे पहले सन्डे डेटर्स दिया 9600, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ रैंडमली, कहीं भी थोड़ा नीचे लिख रहा हूँ सन्डे डेटर्स 9600 और इसमें एडजस्टमेंट है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आफ्टर दैट ओपनिंग स्टॉक दिया 22,800, 22,800। परचेज दिया हुआ है 34,800 जिसमें एडजस्टमेंट है 34,800, 34,800। नेक्स्ट कैरेज इनवर्ड 450, so 2 carriage inwards 450। next to wages, yes students, wages में adjustment है, to wages and amount given to us is 1770, 1770। after that next office rent। चलो तो स्टूडेंट्स ऑफिस रेंट कहाँ जाएगा हमारा, ऑफिस रेंट प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। अमाउंट दिया हुआ है 820, ऑफिस रेंट इज 820। नेक्स्ट आफ्टर दैट इंश्योरेंस, वी हैव एडजस्टमेंट इन इंश्योरेंस और इंश्योरेंस का अमाउंट दिया हुआ है। ओके दिस 820 हैज नो एडजस्टमेंट, इसको यहाँ पे डाल देंगे। इंश्योरेंस में एडजस्टमेंट है स्टूडेंट्स 1440। ओके इंश्योरेंस के बाद है फैक्ट्री रेंट 390, टू फैक्ट्री रेंट 390 एंड वी हैव एडजस्टमेंट ओवर ईयर आल्सो स्टूडेंट्स, फैक्ट्री रेंट में भी हमारा क्या है एडजस्टमेंट है। नेक्स्ट क्लीनिंग चार्जेस 940, टू क्लीनिंग चार्जेस, जहां भी एडजस्टमेंट स्टूडेंट्स यू हैव टू लीव वन लाइन, याद से अमाउंट दिया हुआ 940। नेक्स्ट आफ्टर दैट टू सैलरीज, टू सैलरी और सैलरी में एडजस्टमेंट है 1590, 1590। नेक्स्ट आफ्टर दैट बिल्डिंग एंड प्लांट एंड मशीनरी। चलो असेट साइड लिखेंगे बच्चे लोग, बिल्डिंग दिया हुआ है एंड प्लांट एंड मशीनरी बोथ हैज एडजस्टमेंट ओवर हियर। चलो अमाउंट लिखेंगे बिल्डिंग और प्लांट एंड मशीनरी का, अमाउंट दिया हुआ है 24,000 और प्लांट एंड मशीनरी का अमाउंट है 3,600। नेक्स्ट कैश इन हैंड दिया हुआ है। चलो सन्डे डेटर्स में सिर्फ एक ही एडजस्टमेंट है, इस बार एक ही लाइन छोड़ेंगे। कैश इन हैंड अमाउंट इज 2160, 2160। गैस एंड वाटर, अब स्टूडेंट्स गैस एंड वाटर, सो बेसिकली ट्रेडिंग अकाउंट नीड्स सम मोर लाइन फॉर अस in this particular sum। chalo to gas and water, so you need all these things in the factory, so gas and water 240। फिर ऑक्ट्रॉय है, ऑक्ट्रॉय एक तरह का टैक्स होता है स्टूडेंट्स बट अभी ऑब्वियसली लागू नहीं करता बिकॉज जीएसटी के आने के बाद ऑक्ट्रॉय वगैरह सब आउट हो चुके हैं, वन नेशन वन टैक्स जीएसटी। नेक्स्ट वी हैव फर्नीचर, चलो फर्नीचर नो एडजस्टमेंट 20,540, 20,540। नेक्स्ट पेटेंट्स है, पेटेंट्स एंड इंटेंजिबल एसेट, अगर हो सके स्टूडेंट्स तो मैं यूजुअली क्या करता हूँ, मैं आप लोगों को एक चीज बताता हूँ। देखो आप क्या करो स्टूडेंट्स, पेटेंट्स है ना, पेटेंट्स को यहाँ पे नंबर 1 पे डाल दो एकदम ऊपर, क्यों, क्योंकि वो इंटेंजिबल एसेट है, वो सबसे ऊपर आना चाहिए। पेटेंट्स 10,000 विद नो एडजस्टमेंट, ठीक है। अगर आपने नीचे भी लिख दिया कोई प्रॉब्लम नहीं, आपका सम तो टैली होने वाला है, बट यहाँ पर मैं आपको सिखा रहा हूँ इसलिए मैं आपको भी बता देता हूँ कि आपको ऊपर से हो सके तो पेटेंट सबसे पहले लिख लो, ठीक है। चलो नेक्स्ट, तो बच्चों लोग यहाँ पे हमने ट्रायल बैलेंस का डेबिट साइड पूरा का पूरा कंप्लीट कर दिया है। नेक्स्ट मूविंग फॉरवर्ड टू द क्रेडिट साइड नाउ, सन्डी क्रेडिटर्स दिया सबसे पहले। सन्डी क्रेडिटर्स भी स्टूडेंट रैंडमली ऊपर से 8-10 लाइन छोड़ के आपको लिखना है 2,500 नो एडजस्टमेंट। सेल्स है, सेल्स में भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है फिलहाल, तो सेल्स का मुझे 72,670, 72,670, इसमें कुछ भी माइनस करने की जरूरत नहीं है हमें। तो फिर कितना आएगा 72,670, वी आर नॉट चेंजिंग इट एनीवे, 72,670। ओके फाइन।
Next we have purchase return 2430. Oh my god, such a difficult amount. 2430. चलो 2430. कोई बात नहीं, 800 में से 430 जाएगा तो इतना बचेगा, 370 बचेगा पीछे तो, और 34 में से 2 गया तो 32,000. ओके, 7 3. ओके स्टूडेंट्स, हो गया 32,370. नेक्स्ट व्हाट वी हैव, बिल्स पेबल 15,600. बिल्स पेबल 15,600. ओके, एंड कैपिटल 42,000. स्टूडेंट्स आप देख रहे हो स्टूडेंट्स, सम ऐसे तो इजी लग रहा है, बट नंबर दोनों थोड़े ऊपर नीचे दिए हुए, एकदम थोड़े वियर्ड नंबर है, तो थोड़ा कैलकुलेशन टाइम वी हैव टू पे अटेंशन. Now let's start the sum now. Adjustment students. All the trial balance had only one effect, but adjustment will have now two effects. Starting with the first one, दिया हुआ है हमें क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड अमाउंट कितना 10,000, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट असेट साइड. चलो आई एम राइट ओवर हियर क्लोजिंग स्टॉक 10,000 रुपीज. हो गया. नाउ मूविंग फॉर टू द फर्स्ट एडजस्टमेंट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट टू बी मेंटेन 5% ऑन डेटर्स. चलो तो लेस करेंगे स्टूडेंट्स 5%, आरडीडी लिखेंगे, आरडीडी नाम है 5%, और 9,600 का 960, और 960 का आधा कितना होगा स्टूडेंट्स, 960 will come to 480 rupees. 9,600 का अगर 10% देखें तो 960 होता है, और 960 का आधा कितना होगा स्टूडेंट्स, 480. चलो माइनस करेंगे, 900,600 में से 480 माइनस करेंगे, 9,000 तो आएगा ही आएगा. 120, 9,120, 0 10 से 2 गया, 5 में से 1. ओके 9120. सो सेकंड इफेक्ट डालेंगे यहाँ पे, पीएनएल डेबिट साइड मैं रखूंगा 2 आरडीडी, एंड अमाउंट कितना आएगा 480, हमारा 5% आया, तो उतना मैं क्या करूंगा, लेस कर दूंगा 480. चलो ग्रेट, परफेक्ट. आगे बढ़ेंगे अब हम विद द नेक्स्ट एडजस्टमेंट. एडजस्ट नंबर 2 सेज वेजेस अमाउंट 500. चलो ऐड स्टूडेंट्स, ऐड करेंगे आउटस्टैंडिंग जो है, आउटस्टैंडिंग हमेशा ऐड होता है, वेजेस को आउटस्टैंडिंग है, सैलरी में भी स्टूडेंट ऐड आउटस्टैंडिंग है, और एडजस्ट नंबर 5 में इंश्योरेंस को भी आउटस्टैंडिंग है. सो 3 चीज आउटस्टैंडिंग है, मैं तीनों में कॉपी पेस्ट कर दिया है. ऐड होगा अमाउंट, वेजेस 500 रुपीज है, so 1770 plus 500 will come to 2270. ओके, सैलरी का अमाउंट है, लेट मी जस्ट चेक सैलरी अमाउंट आउटस्टैंडिंग कितना है, 350. So 1590 plus 350 will come to how much, 590 plus 350, so 1940. Let me just again count 0, 9 plus 4, 1 carry, 1940. And insurance में amount students कितना outstanding, let me just check. Insurance amount is only 100 rupees, so that will come to how much, 1440 plus 100, 1540. ओके स्टूडेंट्स, तीनों का सेकंड इफेक्ट डालेंगे, अब तीनों का सेकंड इफेक्ट डालेंगे, कहां पर आएगा, आउटस्टैंडिंग. इट्स अ लायबिलिटी स्टूडेंट्स, तीनों ही एक्सपेंस है और तीनों ही आउटस्टैंडिंग है, सो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस इज अ लायबिलिटी. लेट्स अंडरलाइन दिस. वेजेस का अमाउंट कितना दिया था, 500. सैलरी का अमाउंट दिया था स्टूडेंट्स 500, एंड देन 350. इंश्योरेंस का अमाउंट है, इंश्योरेंस इज 100. ओके, चलो अब तीनों को प्लस करेंगे, 500, 850, 950, 950 rupees. So students, we have completed with both the effects of edges number 2 and 5. We are done. Let's start with third one, factory rent prepaid. Factory rent, so less करेंगे, less prepaid. कितना अमाउंट है प्रीपेड में स्टूडेंट्स, फैक्ट्री रेंट ओनली 100 रुपीज इज प्रीपेड, ओनली 100 रुपीज प्रीपेड. चलो लेस करेंगे, 390 minus 100 will come to 290, and this will go on the asset side. Prepaid factory rent, prepaid factory rent अमाउंट आएगा 100 रुपीज. नाइस, प्रीपेड फैक्टरी रेंट विल कम टू 100 रुपीज. एडजस्ट नंबर 4, लास्ट एडजस्टमेंट ऑफ दिस सम, डेप्रिसिएट करना प्लांट एंड मशीनरी. चलो पहले प्लांट एंड मशीनरी करेंगे, लेस depreciation at the rate 5% per annum. That's nice. Depreciation 5%, और बिल्डिंग के ऊपर स्टूडेंट्स कितना है, 10% है, बिल्डिंग इज 10%. चलो, so this will come to how much, 2,400. 24,000 का स्टूडेंट्स 10% करना है. Yes, building 10%, 24,000 का 10%, 2,400 will come to how much, 21,600. That's so nice, Janish, very good. And 360 का आधा, 3,600 का 10% is 360, और 360 का आधा will come to 180. चलो माइनस करेंगे,
3600 minus 180, 3420, 8 10 में से 8 गया तो 2, 5 में से 1 गया तो 4, 3420. स्टूडेंट सेकंड इफेक्ट डालेंगे. डेप्रिसिएशन विल कम ऑन द P&L डेबिट साइड टू डेप्रिसिएशन बिकॉज इट्स अ लॉस. और दो चीजें, एक तो बिल्डिंग है, तो पहले बिल्डिंग का अमाउंट डाल रहा हूँ मैं 2400, और फिर है प्लांट एंड मशीनरी है. ओके, फिर है प्लांट और मशीनरी जिसका अमाउंट दिया हुआ है 180. चलो दोनों को प्लस कर देंगे. 2400 प्लस 180 कितना होगा? 2580. 2580. ओके स्टूडेंट्स, परफेक्ट. यहाँ पर हमने क्या कंप्लीट कर दिया? पूरा का पूरा सम कंप्लीट कर दिया है. लेट्स मूव फॉरवर्ड नाउ स्टूडेंट्स. अब हमें क्या करना है? सम को टैली करना है. और टैली करने के लिए स्टूडेंट्स क्या करेंगे? सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट की ओर जाएंगे एंड लेट्स सी व्हिच साइड इज हेवियर. सो आई हैव अ बुक ओवर हियर. मैं बुक के अंदर कैलकुलेशन करने वाला हूँ सारा का सारा. 72,670 प्लस 10,000, ये तो इजी है. 72 तो 82,670. परफेक्ट, 82,670 यहाँ भी लिखेंगे. अब पहले मुझे डेबिट साइड कैलकुलेट करना होगा. कितना होता है डेबिट साइड? 22,800. हल्का से हो जाएंगे थोड़ा सा. ओके, 22,800, 32,370, 32,370. कम ऑन यार, ये सब नंबर्स बहुत वियर्ड है. 450, 2270, 2270. ये कितना है? 240 और 300, 590, 590. 0, 7 प्लस 7 प्लस 5, 12, 19, 28, 2 कैरी, 14, 23, 28, 2 कैरी, 10, 17, 19, 24, 2 कैरी, 6, 7, 8. और ये कितना है? 5, 58,480 आ रहा है. 58,480. सो 82,670 माइनस 58,480. 0, 17 में से 8 गया स्टूडेंट्स, कितना आएगा? 17 में से 8 गया तो स्टूडेंट्स 9 आंसर आएगा. ओके, नो प्रॉब्लम. ओके स्टूडेंट्स, एक जो ये क्लीनिंग चार्जेस हैं स्टूडेंट्स, क्लीनिंग चार्जेस स्टूडेंट्स, इसको मैं ट्रेडिंग अकाउंट में डाल रहा हूँ स्टूडेंट्स, क्लीनिंग चार्जेस को पूरा का पूरा. ओके, अज्यूमिंग स्टूडेंट्स ये क्लीनिंग चार्जेस बहुत ही डाइसी है स्टूडेंट्स, बिकॉज ऑब्वियसली क्लीनिंग तो दोनों जगह हो सकती है. बट अभी आपको याद रखना है स्टूडेंट्स, क्लीनिंग चार्जेस हम कहाँ पर यूज करने वाले हैं? हम ट्रेडिंग अकाउंट में यूज करेंगे. ठीक है. अब क्लीनिंग चार्जेस 940 डालने के बाद स्टूडेंट्स हमारा टोटल अमाउंट जो डेबिट साइड का है, जो टोटल अमाउंट जो डेबिट साइड का स्टूडेंट्स 940, 0 2 1 कैरी 14, 59,420 आ रहा है. अब माइनस करेंगे 82,670 को माइनस करेंगे 59,420 में से. 0 5 2, 12 में से 9 गया तो 3, और 7 में से 5 गया तो स्टूडेंट्स 23,250 आंसर आ रहा है हमारा. 23,250 ये हमारा ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ पर आ गया स्टूडेंट्स 23,250. और इसी को हम कहाँ पर लिखेंगे? अब नीचे लिखेंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन. अमाउंट है 23,250. चलो अब यहाँ भी सेम लिखेंगे 23,250. यहाँ भी लिखेंगे सेम 23,250. ऑप्शन में साइड डेबिट साइड के अमाउंट को प्लस करने वाला हूँ. 820 एंड 1540. तो 0,631 कैरी 2,360 आ रहा है. इन दोनों को मिला के 1500 ना, तो 2300 हो गया, 2360. परफेक्ट. 1940 और 480 कितना होगा? चलो 0, फिर 4 प्लस 8 2, 1 कैरी 4, 2420 होगा स्टूडेंट्स. 2420. ओके, नेक्स्ट 2580 है. 2580. 0, 16 1 कैरी, 8 and 5 13, 1 कैरी 7360. तो 23,250 माइनस 7360. 0 5 में से 9 स्टूडेंट्स, 11 में से 3 गया तो 8, और 12 में से 5 तो स्टूडेंट्स 15,890. स्टूडेंट्स कितना आ रहा है? 15,890 आ रहा है स्टूडेंट्स. परफेक्ट. चलो यहाँ पे लिखा हूँ मैं 15,890. ये हमारा स्टूडेंट्स क्या मिल गया हमें? टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट लिखेंगे, कैपिटल अकाउंट. चलो 15,890, 15,890 स्टूडेंट्स, 15,890. तो यहाँ पे ऐड करेंगे, ऐड नेट प्रॉफिट 15,890. टोटल कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? 42 एंड 15 कितना होगा? 57,000, 57,890. चलो टोटल करेंगे अभी 57,890, और फिर प्लस करेंगे 15,600.
15,615, 16, 17, 18,100 आ जाएगा। 1 कैरी 18,100, 950, 950, 0, 4, 1 कैरी, 9 9 18, 19, 1 कैरी, 16, 1 कैरी, 76,940, 76,940। चलो परफेक्ट, यहाँ लिख रहा हूँ मैं 76,940। और स्टूडेंट्स लास्ट स्टेज पे पहुंच चुके हैं हम असेट साइड कैलकुलेट करने वाला हूँ। 31,600, 21 और 10 कितना होता है? 31,600। ओके, 3420, 3420 और कितना? 20,540, 20,540। 9120, 2160 कितना होगा? 082, 280, 11,280। चलो और कितना? 10,100, 10,100। 0, कितना? 8, 8 और 6, 8 और 6, 14, 1 कैरी स्टूडेंट्स। 10, 11, 11 और 7, 18 और 1, 19, 1 कैरी, 3, 4, 5, 6 और 5, 6, 7, 76,940। स्टूडेंट्स एग्जैक्ट आंसर आ रहा है 76,940। परफेक्ट है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, so students, thank you so much. It was nice having all of you. I'm glad you watched the video till the end, and please make sure you can find the answer in the link of the description, in the image form. If you could not see something, anything, any part was a little blur part, so you can refer that, as well as if you don't have textbook, then you can just go through the link and get the textbook, also download the textbook as well. Thank you so much students. You can look on the screen, we are running some online and offline tuitions. Contact us if you are looking out for something like that. And also subscribe to our channel before going. Please like the video and share it with all your friends. Thank you so much. It was nice having all of you. Bye bye. Take care.